Hello students, good morning. Today we will start Act 1, Scene 1 of the very famous play of Shakespeare, The Merchant of Venice. As you see in the box, that is the beginning of the act, some introduction is written here. I will read it and I will try to make you understand actually what we are going to study in this Act 1, Scene 1. The opening scene gives the exposition. The opening scene gives the exposition, introduction. It reveals the situation on which the story is based. स्टोरी जिस पर बेस्ड है उसके बारे में यह इंट्रोडक्शन दे रहा है ये सीन. वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू एंटोनियो द मर्चेंट हु गिव्स द टाइटल टू द ड्रामा. सो after the name of Antonio, who is the renowned merchant of Venice, after his name, the title of the drama is introduced before us. That is the merchant. The merchant means Antonio. So after his name, this drama is introduced before us. Interest is heightened by showing him in a melancholic mood. Actually, when we will start the scene, after that we will find Antonio in melancholic, that is in sad mood, and his friends Salarino and Selenio give various reasons. They will give many reasons for his sadness and they will try to bring him out of it. इसके जो दोनों दोस्त हैं सेलेरिनो और सेलेनियो, ये बहुत प्रयास करेंगे कि किसी न किसी प्रकार से एंटोनियो सैडनेस के मूड से बाहर आ जाए. Bassanio, the closest friend of Antonio, asks for a loan from him in order to present himself as an eligible suitor to Portia, who is a rich heiress of Belmont. उसी समय बेसेनियो आ जाता है एंटोनियो के पास, जो कि उसका बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, और वह एंटोनियो से कुछ लोन अमाउंट डिमांड करता है. ही डिमांड्स सम लोन इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन एलिजिबल सूटर टू पोर्शिया, हु इज अ रिच हेयरेस ऑफ बेलमोंट. वह पोर्शिया से शादी करने के लिए जाना चाहता है बेलमोंट, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे, सफिशिएंट पैसे नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना अच्छे अटायर के, विदाउट गुड अटायर, गुड ड्रेस, ही कैनॉट मेंटेन हिज रॉयल पोजीशन और ही कैनॉट show his gentlemanship among many of the suitors who will be present in Belmont. लेकिन दिक्कत क्या है कि एंटोनियोज ships are still at sea and he has no ready cash with him. एंटोनियो का कोई भी शिप हार्बर पर, वेनिस के हार्बर पर, पोर्ट पर नहीं है, और उसके पास
कैश भी नहीं है हाथ में। बट ही ऑथराइजेज बेसेनियो, चूंकि बेसेनियो उसका बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए वह ऑथराइज करता है, यानी उसे आदेश देता है और उसको परमिशन देता है कि जाओ, है ना, टू यूज हिज गुड नेम फॉर क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्रेडिट यू कैन टेक मनी वट एवर यू नीड and get a loan from the money lender. Get a loan from the money lenders. Whoever the money lenders would be there, you ask, and you know I have a very rich credit in the market. That's why you can get whatever the amount you want to go to Belmont. आप चाहे जितना भी अमाउंट हमारे क्रेडिट पर चाहे तो ले सकते हैं और बेलमोंट जा सकते हैं। So this is the idea given in the book here. Now we will start the scene 1, which will be played in Venice and a street. Here, whenever we study street, it means in India not the street but road. A street means road. Enter in the scene Antonio, Salarino and Salenio. These three friends are walking on the road. And in course of walking, जब ये चल रहे होते हैं, उसी समय एंटोनियो शेयर करता है अपना विचार। एंटोनियो wants to share his own suffering. कुछ उसे लग रहा है कि मुझे मेरे मित्रों के साथ शेयर करना चाहिए, है ना, तो वह शेयर करना चाहता है। क्या शेयर करना चाहता है, हम लोग देखें जरा सा। एंटोनियो कहता है, एंटोनियो अपने फ्रेंड से कहता है, इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। कहता है, इट इज very true. It is very true that I am sad, but I do not know why I am so sad. मैं दुखी तो हूं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं क्यों दुखी हूं। इन सूद, दिस इज द रियलिटी, यह एकदम सत्य है कि मैं दुखी हूं। इट इज द रियलिटी दैट आई एम सैड, बट इट इज ऑल्सो द रियलिटी दैट आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस सैडनेस। हमें सैडनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। And my dear friends, it wearies me, and you know, it makes me anxious. It makes me anxious, grieves, and you say it wearies you. What is the meaning? जरा सा समझो इसको। ये तीनों दोस्त हैं। अब एक दोस्त कहता है कि फ्रॉम सैडनेस आई एम वेरी वरीड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट द सैडनेस, आई एम एंग्सियस, आई एम ग्रीव्ड ड्यू टू सैडनेस। अब मैं तो दुखी हूं सैडनेस के कारण,
लेकिन यू से तुम भी कहते हो कि तुम दुखी हो। क्यों भाई? आपके कोई मित्र होंगे तो आपके मित्र कह सकते हैं ना कि भाई तुम्हारे दुख को देखकर हमें भी बहुत ही दुख होता है। तो उसी प्रकार से व्हेन दीज फ्रेंड्स, ये एंटोनियो का स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट मेड बाय एंटोनियो, इट वेरीज मी, यानी बाय सैडनेस ही इज वेरी वेरी एंग्सियस। लेकिन वह उसी समय और भी कहता है कि चूंकि ये सैडनेस मुझे चिंतित कर रहा है और इस चिंता के कारण तुम लोग भी, मेरे फ्रेंड होने के कारण तुम लोग भी चिंतित हो गए हो। यू से इट wearies you, due to my sadness you also are very very anxious। चलिए, बट लेकिन दिक्कत यह है, हाउ आई कॉट इट, हाउ आई कॉट इट, फ्रॉम वेयर डिड आई एक्वायर इट, फाउंड इट, कहां मैंने इसे पाया, और केम बाई इट, आई गॉट इट, ये मुझे नहीं मालूम है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड आई, है ना, गेट और डिड आई ऑब्टेन, कहां से मैंने इसे पाया ये मुझे मालूम नहीं है। वट स्टफ इट इज मेड ऑफ, ये भाई किस चीज का बना है ये मुझे नहीं मालूम है। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, और इसका जन्म भी, इसका ये ओरिजिन भी कहां हुआ है यह भी मुझे मालूम नहीं है। फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटेड आई डोंट नो। स्टिल आई एम टू लर्न, कह रहा है स्टिल आई एम टू लर्न, आई हैव टू नो इट। फिर कहता है एंड सच वांट वीट सैडनेस, सैडनेस कैसा सैडनेस, वांट वीट, सच अ वांट वीट सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच आडो टू नो माई सेल्फ। ये क्या कह रहा है यहां पर, एंड सच ए वांट टू वीट सैडनेस, वांट रॉबर है ना, रॉब करने वाला, स्टील चुराने वाला, क्या चुराएगा भाई, वीट, वीट का मतलब क्या हुआ, विजडम, इंटेलिजेंस, जो कि मेरा इंटेलिजेंस को चुराएगा। कौन चुराएगा, सैडनेस, एंड सच वांट विद सैडनेस, सैडनेस विच इज गोइंग टू रॉब आउट माई इंटेलिजेंस मेक्स ऑफ मी, और ये मेरा इंटेलिजेंस, विट, विजडम को चुरा करके मुझे क्या कर देगा, मुझे एब्सेंट माइंडेड कर देगा। मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच आडो, and in this way it will keep me in trouble to understand myself, to recognize myself, to know myself, to identify myself। तो ये सैडनेस क्या करेगा, मेरे विजडम को चुरा लेगा, और जब विजडम को चुरा लेगा तो हम एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे, और जब एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे तो ये बहुत बहुत ट्रबल क्रिएट, आडो ट्रबल क्रिएट करेगा टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, नहीं हैं। और इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट यहां समाप्त हुआ।